And I taught you from the observer's effect in quantum physics how what happens here is science. मैंने आपको सिखाया था ऑब्जर्वर्स इफेक्ट से, क्वांटम फिजिक्स से जो यहाँ होता है वो विज्ञान है. It's not superstition. ये सुपरस्टिशन नहीं है. Words are energy and energy affects matter. That's what theory of relativity is. शब्द जो है वो एनर्जी है और एनर्जी जो है वो ठोस पदार्थों को बदल देती है. ये बता दिया सिर्फ. All the matter that you see is energy. जो कुछ मैटर आप देखते हो, ठोस देखते हो, वो एनर्जी से बना है. Okay? All right. Let's go to the word. आइए वचन में चलते हैं. वचन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा. See, I love to study about quantum physics. Before you go into the word, I'll tell you in simple words. मुझे प्यार है quantum physics पढ़ने से. And quantum physics is the study of subatomic particles like proton, electrons, neutrons. Quantum physics जो है वो subatomic particles की study है. और जब quantum physics scientists पढ़ने लगे तो उनका दिमाग घूम गया. When scientists began to study quantum physics, they got lost. Because the quantum field acts very differently. क्योंकि जो quantum field है वो बहुत ही अलग प्रक्रिया करती है. मैंने आपको पिछले कितने लोगों को याद है ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? How many people remember observer's effect? कि जब आप अंदर घुस जाएंगे और आप इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को देखेंगे, जब आप उनको ऑब्जर्व करते हैं तो वो फॉर्म ले लेते हैं, जब ऑब्जर्व नहीं करते तो दे आर अ वेव ऑफ एनर्जी. That when you look at them, they take a form. When you don't observe them, the particles are in the wave form as energy. Okay, and the scientists who did that, they got Nobel Prize in 2022. जिन साइंटिस्ट ने ये पता किया उनको नोबेल प्राइज मिला 2022 में. So मैं आज आपको क्वांटम की एक थ्योरी देना चाहता हूं जो है क्वांटम एंटेंगलमेंट. I want to give you a second theory of quantum today, that is quantum entanglement. और क्वांटम एंटेंगलमेंट ये कहती है, the quantum entanglement says that if there are two tiny particles, say electrons or neutrons, वो कहती है अगर दो छोटे पार्टिकल्स हैं and if they become entangled, और अगर वो एक दूसरे से जुड़ गए, and then because आप जानते हैं ये पूरा यूनिवर्स जीवित है क्योंकि परमेश्वर के वचन से बोला गया है. The entire universe is alive. आप देखा सांस जब लेते हैं तो क्या होता है? हाँ, डेड बॉडी क्या होती है? उसमें कुछ कंपन हिलता नहीं है, जो जीवित तो हिल रहा है. जब साइंटिस्ट नीचे गए सॉलिड के तो देखा रहे तो सॉलिड नहीं है, ये तो वाइब्रेट कर रहा है. When the scientists check the matter at its depth, it is vibrating. सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है. Can you put what Nikola Tesla said? It's vibrating. Everything around you is vibrating. आपके आसपास जो कुछ भी है वो एक तरंगों में वाइब्रेट कर रहा है. Okay, आप देखेंगे. All right, where is that? Okay, anyway. So जब एंटेंगलमेंट हो जाता है, जब दो पार्टिकल्स आपस में एंटेंगल होते हैं, एंटेंगलमेंट हो जाता है और फिर वो दूर चले जाते हैं, इवन बहुत दूर, जितना दूर आप सोच सकते हैं. तो जो इस पार्टिकल के साथ होता है एग्जैक्टली वही उस पार्टिकल के साथ भी होता है. When two particles get entangled and then if they are separated in terms of distance, no matter how far, what happens to one particle also happens to the other particle. इसको बाइबल कहती है oneness. The Bible calls this oneness. Union. एक होना. ओके, और ये थ्योरी अभी प्रूव होके इनको नोबेल प्राइज मिला है कि इट्स नॉट अ फिनोमेना दैट हैपेंड समवेयर, and this it's a proper principle. This theory has been proven. ये एक सिद्धांत है, एक घटना नहीं है. आप समझ गए? फिर से समझाऊं? Let me explain again. हाँ, जब दो कण एक हो जाते हैं और फिर वो अलग भी हो जाए तो जो एक के साथ होता है वही इंस्टेंटली दूसरे के साथ भी होता है. When two particles are united and if then they are separated in distance, what happens to one particle happens to the other as well. Albert Einstein called it spooky action at a distance. Albert Einstein ने इसको अजीब व्यवहार कहा, एक दूरी पर जो होता है. Because science cannot explain it why it happens. क्योंकि साइंस समझा नहीं सकती कि ये क्यों हो रहा है. But the word can explain why it happens. लेकिन वचन ये समझा सकता है कि ये क्यों हो रहा है. Okay. So how does it connect to faith? ये विश्वास से कैसे जुड़ा है? As believers, we are entangled in Christ. विश्वासी होने के नाते हम सब मसीह में जुड़े हुए हैं. Put 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6:17. The Bible says, "He who is joined to the Lord is one spirit with him." बाइबल कहती है जो मसीह से जुड़ गया उसके साथ एक आत्मा हो गया है. Okay?
सो इसका मतलब जो प्रभु से जुड़ गया वो एक आत्मा उसके साथ हो गया. He who is joined to the Lord has become one spirit with him. That means whatever happened to Jesus इसका मतलब जो कुछ यीशु के साथ हुआ है didn't just happen for you, it happened to you. सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके साथ भी हुआ है. आप जानते हैं सच्ची मसीहत क्या है? Because this is what I asked the Lord. मैंने कहा प्रभु क्या, what is Christianity? वो कोई धर्म नहीं. मसीहत क्या है? It's not a religion. So this is what God told me. प्रभु ने मुझसे ये कहा. He said the union of God and man is Christianity. परमेश्वर और मनुष्य का एक हो जाना ही मसीहत है. Okay? So, first thing, let's see what happened to Christ और वो कैसे हमारे साथ आज कनेक्टेड है. देखते हैं मसीह के साथ क्या हुआ and how is it connected to us today. First thing is that you were crucified with Christ. पहली बात यह है कि आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं. Galatians 2:20. गलातियों 2:20. Paul says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. पौलुस ने कहा मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है. Okay? So, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था, आप जानते हैं पूरा, जब आप पुराने टाइम में देखेंगे सारे लोग क्या कर रहे हैं? They are trying to find an escape from sin. Our old man, all the people they are trying to, वो पाप से छूटना चाह रहे हैं, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं. यही पुराने ऋषियों की भी प्रार्थना थी. अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से ज्योति की तरफ ले, हमें मृत्यु से अमृत की तरफ ले जा. और यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं. They were praying, lead us from darkness to light, from death to life. And Jesus said, I am the light, I am life and resurrection. Okay? कर्म करके आप पाप की साइकिल से बाहर नहीं आ सकते. By works, by the virtue of doing works, you cannot come out of the cycle of sins. यीशु मसीह ने बोला सदूसियों से, बोला तुम वो जो धर्म के लोग थे, धार्मिक गुरु थे उस टाइम के, यीशु ने कहा हाय तुम पर, तुम वो हो जो अंदर से तो सड़े हुए हो मगर बाहर से प्याले को साफ करते हो, मगर अंदर से सड़े हुए हो. अरे बाहर से व्हाइट कपड़े पहनने से साफ नहीं हो जाओगे जब तक अंदर साफ ना किया जाए. Jesus in the times of his religious leaders, he said, you're like graves inside that are rotten but on the outside shiny and white. मैं आपको एक बात कहूं, और बाइबल बताती है हमारे अच्छे कर्म कैसे हैं? गंदे फटे पुराने चिथड़े. And the Bible tells us our good works are like filthy rags before God. तो अगर आप एक कप लो जो गंदा है और एक गंदा कपड़ा लो और साफ करो तो साफ हो जाएगा. If you take a cup that is dirty and you take a dirty cloth and try to clean it, will it ever be clean? इसीलिए हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है. This is why we needed a savior. क्योंकि अच्छे कर्म, थैंक गॉड, अच्छे कर्म से कोई बचाया नहीं जाता वरना सब नरक जाते. और मैं आपको बताता हूं क्यों. Thank God that no one is saved by good works, otherwise everybody will go to hell. क्योंकि हम पाप केवल कर्म में नहीं अपने विचारों में भी करते हैं. Because we don't just sin in action, we also sin in our thoughts. यीशु मसीह ने कहा अगर किसी मनुष्य ने किसी पराई स्त्री को देखकर मन में व्यभिचार किया तो उसने मेरी नजर में व्यभिचार कर दिया. Jesus said if a man looks at a strange woman and commits adultery in his heart, he has committed adultery in my sight. आज आप देखते हो people are filled with bitterness, लोग कड़वाहट से भरे हुए हैं, jealousy, ईर्ष्या, competition. सो अच्छा काम क्या है? एक गरीब आदमी को 10 रुपए दे देंगे एक दिन में, ये अच्छा काम, मगर 10 करोड़ पाप कर दिए उस दिन में. So in one day they did one work of charity by giving to the poor, but did millions of sins in their heart. If God weighs your good works and the evil intentions of your heart, your good works will be like filthy rags before Him. अगर प्रभु एक तराजू में आपके अच्छे काम और आपके सारे पापों को रख देगा तो वो फटे पुराने चित्रों के समान होंगे वो अच्छे काम. इसीलिए उसने कहा ये खुद उद्धार नहीं कर सकते अपना, मुझे मनुष्य रूप धरना पड़ेगा इनका उद्धार करने के लिए. Because he knew that we are not able to save ourselves, he took a human form to deliver us, to save us. Amen. और जब यीशु मसीह क्रूस में गया तो केवल वो क्रूस में नहीं गया, हमारा पापमय स्वभाव भी उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया. And when Jesus went to the cross, he did not go to the cross alone, but our sin nature was crucified with him. मेरे पीछे बोलो, I was crucified with him. मेरे साथ कहो, मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया.
सो पुराना जो जीवन था, पुराना जो मनुष्य था, वो क्रूस पे चढ़ाया गया. That old